Welcome to dear students in the lecture second of time series. Yesterday we have discussed time series. I've told you time series is a series of values taken by a variable at different time. And we have discussed the component of time series. What are the component? You know, there's a four component: train, seasonal variation, cyclical variation, and random variation. Okay. Importance of time series. आपका टाइम सीरीज एनालिसिस का क्या इंपोर्टेंस है? आप जानते हैं कि टाइम सीरीज एनालिसिस इज द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग पास्ट बिहेवियर, evaluating current accomplishments, and to make an estimates about the future operation. According to B.J. Mendel, B.J. Mendel is a statistician. Says quantitative data on the past and present behavior of an activity in combination with knowledge about the various factors that influence it makes possible to forecast their future magnitude. In short, they are the following use of time series analysis. टाइम सीरीज एनालिसिस से हमको मालूम पड़ता है knowledge of the past behavior of the factors which are responsible for the variation. वेरिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर हमारे पूर्व में रिस्पॉन्सिबल रहे हैं उसके बारे में हमको मालूम पड़ जाता है। और सेकंड, पास्ट ट्रेंड के आधार पर हम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को सर्च कर सकते हैं। पास्ट ट्रेंड के आधार पर फ्यूचर ट्रेंड पॉसिबिलिटीज को स्टडी कर सकते हैं। मीन्स प्रोजेक्टिंग पास्ट ट्रेंड इनटू द future possibilities. Next one, evaluating present achievement. Next one, interpretation of the variation and how they are related with each other. And the for the more detail you may read in the various books. Next one is model. We can assume two models for the analysis of time series. There are two models, additive model and multiplicative model. Additive model हमारा क्या कहता है? Here we assume that the various components are additive. जो हमारे components हैं टाइम सीरीज के उनका बिहेवियर कैसा है? एडिटिव है। लाइक ut बराबर tt
plus ST plus CT plus RT. What is the UT? UT, original value at time t, TT, trained value at time t, ST, seasonal value at time t, there is a seasonal variation at time t, CT, cyclical variation value at time t, RT, random variation value at time t. Next one is multiplicative model. Here we assume that the various components are multiplicative. So we can say UT बराबर TT into ST into CT into RT. These are the two models. Next one, measurement of train. How to measure the train? Problem is this, how to measure the train. There are the four methods to measure the train. ग्राफिकल मेथड, जिसे हम इंस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं. सेकेंड वन, मेथड ऑफ सेमी एवरेज. नेक्स्ट वन, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. एंड लास्ट वन इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस. इसका ट्रेन को मेजर करने के हमारे पास चार मेथड हैं. ग्राफिकल मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर and method of moving averages. Right? One by one we will discuss. One is the first is the graphical method. Yeah, you say by inspection method. In a graphical method, we plot the value of the time series on the graph paper. We plot the values of the time series on the graph paper. There are the various points. आप देख रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको. तो हमने क्या काम किया, and draw a line passing through the maximum number of values, leaving approximately equal number of points on either side of line. This method is quite simple, but the disadvantage of the method is that different persons may draw different lines for the same data. जब आपने देखा कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या होगा कि डिफरेंट कंक्लूजन्स में बी ड्रॉन बाय डिफरेंट पर्सन्स. आप पॉइंट देख रहे हैं, सब कुछ कि मैंने इसको पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन मिलाया, ऐसे मिलाया है. आपने थोड़ा सा आड़ा मिला दिया, किसी ने तिरछा करके मिला दिया, तो जितनी लाइनें होंगी उतना ही हमारे कंक्लूजन मिल जाएंगे. और जो लाइन है इसको बोलते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन. राइट? नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ सेमी एवरेज. In a semi-average method, we divide the series into two equal parts. Suppose आपके पास टाइम दिया हुआ है, टाइम लेंगे आप एक्स एक्सिस पर, और कोई टाइम मैंने देखा ईयर्स, और जो उसकी वैल्यूज दी हुई है, सपोज सेल है, वो आ जाएगा आपके पास वाई एक्सिस पर.
तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, वी डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ईच पार्ट सेपरेटली. These averages are plotted on the graph paper against their respective middle periods. The 2 points so obtained are joined by the straight line. आप ग्राफ में देख रहे हैं कि आपने पूरी सीरीज को दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, आपने इक्वल पार्ट्स में अलग कर लिया आपने, और उनके सेपरेटली आपने एवरेज ले लिए और एवरेज वैल्यू को आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया. तो कितने पॉइंट्स आएंगे आपके पास, 2 पॉइंट्स आएंगे. उन दोनों पॉइंट्स को आपने इसके जब मीट कर दिया तो वो क्या लाइन होगी, तो आप जानते हैं दो 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन. एंड हियर दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन. नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज. क्या मतलब है इसका मूविंग एवरेज का? एक मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम नोट की हुई है, आप देखें अपना स्क्रीन पर कि फाइंड 4 yearly moving averages to the following data and obtain trend values also exhibit the original series and the trend value on a graph paper. इनिशियली हम लोग निकाल रहे हैं मूविंग एवरेज. तो किस तरीके से निकालते हैं, आपके पास टाइम दिया हुआ है और उनकी वैल्यूज दी हुई है. टाइम दिया हुआ ईयर 2011 पर कोई वैल्यू 5 है, 12 पर 7 है, 13 पर 9, 14 पर 12, 15 पर 11, 16 पर 10, 17 पर 8, 18 पर 12. तो हम किस तरह से मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले क्या काम किया हमने, वी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 वैल्यू. हमने 4 वैल्यू को सम किया, ये कितना हो जाएगा, 5 + 7 + 9 + 12, 12 24 और 9 33. आप देख रहे हैं इसके अंदर. एंड पुट इट against the middle of second and third. Put it against second and third. इसको बोलेंगे हम, आप देख रहे हैं हेडिंग्स के अंदर, इट इज ए 4 yearly moving sum. इट इज ए 4 yearly moving sum. ओके. अब क्या किया हमने, लीविंग द फर्स्ट टर्म, means then we leave the first value and take sum of 5 values starting from second. अब आप सेकंड वैल्यू से फिर देखिए तो कितना हो रहा है, 7 + 9 + 12 + 11, दैट इज 39. तो ये कहाँ प्लेस हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ के मिडिल में. सिमिलरली leave the first value, second value, then we will start from the third value. तो कौन सी वैल्यू लेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. तो कितना हो जाएगा, 21, 32 और 10, 42. सिमिलरली वी विल प्रोसीड फर्दर. ओके. अब आप देख रहे हैं उसमें एक ऊपर हेडिंग लिख रहा है सेंट्रल सम, क्योंकि सेंट्रल सम की क्यों आवश्यकता पड़ रही है हमको, क्योंकि जो वैल्यू हमने पुट किए हैं वो ईयर्स के मिडिल में किए हैं. भाई आप देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू जो हमने पुट की है वो है 12 और 13 के बीच में, नेक्स्ट वैल्यू 13 और 14 के बीच में है,
इनका हमको सेंट्रल सम करना है। तो सेंट्रल सम करने में क्या होगा, जब 33 प्लस 39 दैट इज 72। इज 39 प्लस 42 81, 42 plus 41 83, 41 plus 41 that is 82। नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपके आ रही है ट्रेंड वैल्यू टी, या हम इसको कह सकते हैं दीज आर द मूविंग ट्रेंड वैल्यू, मतलब दीज आर द मूविंग एवरेजेस। अब आपने ये देखा सेंट्रल सम कितनी वैल्यूज का हो गया, ये 4 ईयरली मूविंग सम में कितनी 4 वैल्यूज, 4 प्लस 4 ये 8 वैल्यू का सम हो गया। तो एवरेज जानते क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। सम कितना है 72, नंबर ऑफ वैल्यूज 8 डिवाइड बाई 8, 8 9 जा 72। सिमिलरली 39 प्लस 42 81 डिवाइड बाई 8 10.125, सिमिलरली एंड सो ऑन you can solve it, right? यदि सपोज कीजिए इसी प्रॉब्लम के अंदर मेरे को कैलकुलेट करना होता फाइंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज, फाइंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज, दैट इज वेरी सिंपल। इन a third column you will take the 5 ईयरली मूविंग सम। तो क्या हो जाता है ये 5 प्लस 7 12, 9 33, 9 प्लस 12 33 प्लस 11, ये हो जाता है आपका 44। We will take the sum of first 5 values, that is 44, and put it against the third year. Put it against third year. In the next term, we will leave the first term and take the sum of another 5 values. इससे हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं समों को सारे, सबसे हम कैलकुलेट हो जाएंगे। तो वहां आपको सेंट्रल सम की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आप डायरेक्टली अपना ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो आपका 5 ईयरली मूविंग सम आया है उसको 5 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो जाएगी ट्रेंड वैल्यू, राइट। अब प्रॉब्लम ये कहता है कि ऑल्सो एग्जिबिट द ओरिजिनल वैल्यू एंड ट्रेंड वैल्यू ऑन ए ग्राफ पेपर। इन वैल्यूज को आप ग्राफ पेपर पर शो करिए। कैसे शो करेंगे आप, तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर मैंने ईयर लिया है, शुरू हो रहा है 2011 से, मतलब 1 वीक स्क्वायर ईच कंटेन 1 ईयर, तो इट इज अप टू 2018। और वाई एक्सिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ड्रॉइंग ए ग्राफ for the original values. First of all, we take the original value, and in the minimum value is 5 and maximum value is 12. So we will take in the y-axis 1 centimeter is equal to 2 units, and we will draw the values. Now you see, you can draw a graph. You will just put the values. At 2011, you are seeing the 5. At 2012, 7. Similarly for 13, 14, 15, 16, 17, 18. इन पॉइंट्स को with the help of scale we will meet them. स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को हमने मीट कर दिया। तो आप ये देख रहे हैं जो डार्क लाइन शो कर रही है वो ओरिजिनल वैल्यू को शो कर रही है,
बिल्कुल डार्क दिखाई दे रही होगी आपको, वो डार्क क्या शो कर रही है, और ओरिजिनल वैल्यू को शो कर रही है। सिमिलरली आप देख रहे हैं डॉट डॉट में मैंने ट्रेन वैल्यूज को लिया है, तो आपने एक चीज देखी थी ट्रेन वैल्यूज निकालते समय कि हमारी जो एक्सट्रीम ईयर्स हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, उनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मीन्स वी डू नॉट गेट द ट्रेन वैल्यू फॉर द फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 ईयर्स। पहले 2 सालों का और लास्ट के 2 सालों का हम ट्रेन वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम ग्राफ पर भी इनको प्लॉट नहीं कर सकते, राइट। तो आपने देखा, तो 2013 पर कितना आ जाएगा 9। आप देखो दोनों मीट कर रहा है क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू भी इतनी थी और आपकी ट्रेन वैल्यू भी सेम आ रही है पॉइंट्स पर। 2014 पर 10.125, 15 पर 10.275 and then 10.25। तो मैंने इन पॉइंट्स को आपके पास डॉट से मीट कर दिया है and this is our required graph. I think that is very very clear and very simple. Next one is method of least square. With a trend line by the method of least square. You are very familiar with the method of least square. You have studied in the BSc first year in a statistical method paper. Curve fitting, in the chapter of curve fitting, you have studied the method of least square. That is very simple. Here you have given the time and values. You know, in a method of least square, so the fitting of a straight line by barabar a plus bx. Here we will take the equation ut बराबर a plus bt। क्या लिया, ut बराबर a plus bt। Here t is an independent variable and ut is a dependent variable. Ut is depend on the time t. Ut is depend on the time t, right? By the method of least square, normal equations are, आप जानते थे y बराबर a प्लस बी एक्स के अंदर समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x एंड समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू a summation x plus b summation x square. But here is difference is that only the signs are changed. x की जगह t हो गया है और y की जगह ut हो गया है. Now you may calculate. Like you have to find the value of summation t, summation ut, summation tut and summation t square. First of all, we convert in the third column t बराबर year minus, there is some mistake in the writing, 1944 नहीं होगा, year minus 2004. It is by mistake, year minus 2004. Okay, year minus 2004. It's not matter, it doesn't matter. Year minus 2004 means 2001 minus 2004, that is minus 3, 2002 minus 2004 minus 2,
minus 2003 minus 1, you can calculate. These are the value minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. And you find the t square. Square this value and you may get it. And t mu t, and then you will get the values. We have got the values of summation ut, summation t square, summation tut. Put this value in the equations, and we get the value of a and b. So here we got a बराबर 90 and b बराबर 2. So the equation of curve is ut बराबर 90 plus 2t. आप a की वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू पुट करेंगे. a बराबर 90 और b बराबर 2. सो ut बराबर 90 plus 2t. और you change t बराबर year minus 1940. But again that is mistake. 1944 रिक्वेस्ट नहीं है इधर, ये 2004. year minus 2004. Now we calculate trend value. This is a ut बराबर 90 plus 2t. या यूज t बराबर कैपिटल T बराबर 90 plus 2t. Suppose you put the value of t बराबर minus 3. So 90 plus 2 into minus 3, that is a 84. Next 90 plus 2 into minus 2, that is 86. 90 plus 2 minus 1, 88. At t बराबर 0, या 90 plus 90, and further 90, 92, 94, 96. These are the required trend value, या you say seasonal values. Oh, sorry, these are required our trend value. Seasonal value we will study in the next lecture, right? Similarly, we can draw a graph. On x-axis we have taken the year, in the y-axis we have taken the values. जैसा भी हमने मूविंग एवरेज के अंदर ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ बना सकते हैं आप. एक्स एक्सिस पर आपने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर वैल्यूज नोट कर दिया. एक ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया ईयर और यूटी के बीच में, जैसे यूटी आपके पास दिखाई दे रहा है, पॉइंट्स से दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रहा है. इसी तरीके से ईयर और ट्रेंड वैल्यू का ड्रॉ कर दिया मैंने. तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज ए ट्रेंड लाइन. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास कोई भी वैल्यू छूटेगी नहीं. आप हर प्रत्येक ईयर के लिए, प्रत्येक वैल्यू के लिए आप अपना ट्रेंड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू फॉर each and every value, but in the moving average it's not possible. Okay, I think today lecture is completed. The next time we will study how to measure the seasonal variation. How to measure the seasonal variation. Okay, स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखें आप लोग, कि आप इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक्स में भी दिए हुए हैं काफ़ी, उनको भी देखें आप, और खुद भी अपना विद द हेल्प ऑफ बुक क्वेश्चंस तैयार करें. ओके.